निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की निर्मला देव्यै नमो नमः। तमेव साक्षात् श्रीगणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। जय शो माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में शो माता जी की छवि को स्थिर करते हुए, परम पूजनीय शो माता जी हम सभी के हृदय को और पावन कीजिए। शो माता जी की छवि को बीचों बीच हृदय में स्थिर करते हुए बार बार प्रार्थना, परम पूजनीय शो माता जी हम सभी के हृदय को और पावन कीजिए। माँ के श्री चरण कमल, शो माता जी के श्री चरण कमलों को बीचों बीच हृदय में देखेंगे। परम पूजनीय शो माता जी हम सभी के हृदय में श्री जगदम्बा स्वरूप में संपूर्ण शक्तियों के साथ अपने श्री चरण कमल लेकर आइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों की बीचों बीच हथेली, बीचों बीच हथेली को देखेंगे। शो माता जी हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को अपने पिंगला नाड़ी पे नीचे से ऊपर पिंगला नाड़ी को देखेंगे। शो माता जी आप ही तो श्री महासरस्वती भी हैं। हमारे पिंगला नाड़ी में इनकी शक्ति को पूर्ण जागृत कीजिए। अपने दाएं हथेली को देखेंगे और पूरे पिंगला नाड़ी को नीचे से ऊपर। शो माता जी आप ही करता है, आप ही करविता है। कृपा करके हमारे अंदर से समस्त कर्ता भाव समाप्त कीजिए। राइट स्वादिष्ठान पर चित्त रखेंगे। राइट स्वादिष्ठान से सिर के तालु भाग को जोड़ेंगे।
राइट नाभि को सिर के तालु भाग से जोड़ेंगे। राइट हृदय को सिर के तालु भाग से मिलाएंगे। राइट विशुद्धि को सिर के तालु भाग से मिलाएंगे। राइट आज्ञा को सिर के तालु भाग से जोड़ेंगे। फिर से पूरी पिंगला नाड़ी को नीचे से ऊपर चित ले जाते हुए शिव माता जी हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। चित्त को सिर के तालु भाग पर स्थिर करते हुए श्री निर्विचारिता मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। With love, all kinds of creative action takes place. You see how Raulbai has love for me. And in this place, you all also got new ideas of creating a beautiful thing. And as love will increase, your creativity will develop. So the basis of all creativity of Saraswati is love. If there is no love, there is no creativity. It's even in the deeper sense. If you see, people who have created all the scientific things are also out of love for the masses, not for themselves. Nobody has produced anything for themselves. If they make something for themselves, it has to become for universal use, otherwise it has no meaning. Even if you say atom bomb and all these things are created from science, they are also very protective. If they had not created those, people would not have taken out their minds from war. Now nobody can think of having a big war. Of course they are having cold wars, but that also will gradually stop when they will be fed up of it. So all the activity on the right hand side of Saraswati basically has to end up in love, starts with love and ends up in love. Whichever does not end up in love coils up and finishes up. It just disappears. So you can see that even matter which is not used for love just finishes. The basis has to be love. Otherwise all such matter that we create, which has angularity, which is not fitting into the mass media, which is not appealing to the masses. Of course, it takes time. We have seen that it takes time. But it has that tendency always to disappear in the thin air as soon as you find it does not appeal to the masses. Now this love that we talk of, this great love of God we talk of, we know that it for definite through vibrations. People do not have vibrations, but still we can feel the vibrations in a very unconscious way. All the great paintings of the world have vibrations. All the great creative works of the world have vibrations. Only those who have vibrations have been sustained by time. Otherwise all other things are destroyed. There must have been monuments and horrible statues and horrible things that have been created long time back, but were all destroyed by nature and they could not stand the impact of the Kala, that is the destructive power of time. So all that is sustaining, all that is nurturing, all that is ennobling comes from this sense of love which is within us, very much developed, but within others also who are not yet realized. Ultimately the whole world has to realize
that one has to go to that ultimate love of God, otherwise it has no meaning. Now you have seen in art, people have taken to other methods of appealing to people by using cheap things and very vulgar things, just to make people think that this is art. But this will all disappear. It cannot sustain the impact of the time, as I told you. It cannot, because the time will kill it. All these things have to disappear. And already you can see the result, how things are changing everywhere, even in the West. So there is no need to be so much disappointed with the West and to say that the Western world is a wasteland. It is going to be all right, and it has to be done. Especially it has done a lot of puja of Saraswati, I should say, in the West. Much more that they have done in India, because they have gone to learning, they have tried to find out so many things. But only thing they forgot that it is a goddess of learning. Everything comes from the goddess, that's what they've forgotten. And that's why all the problems have been created. If there is no spirit in your learning, if there is no source of the goddess in your learning, then it is absolutely useless. If they had realized that there is the spirit that is working it out, they would not have gone that far. And that's what I was warning the Indians all through, that you are now taking to industrial revolution in a way. And to avoid all the complications of industrial revolution, you must try to know the spirit. If you do not know the spirit, you will have the same problems as these people have, because they are also human beings, you are also human beings. You will go the same way, at random you will run, and there will be problems, the same problems as the Western people have suffered. Now, Saraswati's blessings are so many that one cannot describe in such a short time. And the Surya has given us so many powers that it is impossible to tell them even in one lecture, even in 10 lectures. But how we go against Surya and how we go against the Saraswati while doing the worship of Saraswati is to be seen very clearly within ourselves. For example, the Western people are very fond of Surya because they have no Surya with them. But they go too far with it, as you know, and create complications within themselves of Surya. But the main thing that one has to achieve through Surya is the light within. Is the light within. And if Surya Chakra at the Agya level is occupied by Lord Jesus Christ, then it is even more essential that the purity of life, what we call niti, is the morality of life. The morality itself has become very much sort of an argument in the West. People don't have any sense of absolute morality. On vibrations, of course, you know. But they have gone all against it. Those who are the worshippers of Jesus, those who are the worshippers of the Surya, of the Saraswati, have all gone against the powers of Surya, just disobeying it. Because you cannot be a Surya if you do not have a proper sense of morality and holiness. The Surya itself brings light. You see everything clearly. So many qualities Surya has got. It dries up everything that is wet, dirty, filthy. It dries up all these places which create parasites. But so many parasites are created in the West. Not only parasites, but there are horrible cuts and horrible things which have come into those countries which is supposed to be full of light. And in that darkness they exist. Darkness about their spirit, darkness about their own knowledge, and darkness about love. These three things have taken over in the places where you are supposed to love light. Light doesn't mean what you see with your gross eyes. Light means from within, the light of love. That one should understand. Light of love. And it's so soothing, it's so sweet, it's so beautiful, it's so enamoring, it's so abounding that unless and until you can feel that light within you,
that light which is of pure light, of purity, pure relationships, pure understanding. If you can develop that kind of a light within yourself, then whole thing will be cleansed. Wash me and I shall be whiter than snow. This is what happens to you when you are completely cleansed. The purest form of nature is within us. The purest form of nature is within us. Our chakras are made out of that purest form of nature. We are the only people who are spoiling it by our mental thinking. Again the same, Saraswati's work. We are going against Saraswati itself. Saraswati cleanses all that is impure in nature, while with our brain activity we are spoiling all that. All our brain activity goes against pure intelligence. And that's what one has to understand, that this pure intelligence is not to be soiled by our thinking. Our thinking can make us so bumptious, so ego-oriented, so impure, that we can really eat the poison and say, what's wrong? Just the opposite of Saraswati. If Saraswati is within us, she gives us subuddhi, wisdom. And that's why to worship Saraswati, to worship Surya, we must have that clear vision as to what we have to be, what we are doing, what filth we are living in, what our mind is getting into. After all, we are here for emancipation and not for just pampering our ego and living with our filth that is with us. So this light should come within us, and we should try to rise above our own mental filth which is being created around us. Apart from that, you have to go higher and understand that there is within us a thing called ego. And this ego is false, absolute false. You do not do anything. Actually, when you turn your eyes here and there, when your attention is here and there, it's nothing but your ego is trying to overpower it. But actually ego is an absolute falsehood, because there's only one ego, and that is of God Almighty, Mahat Ahankara. There is no really any ego that exists. It's a myth, it's a very big myth. Because if you start thinking, you are doing everything, you are doing this, you are doing that, which you are not doing, then this nonsensical ego comes in and you start working it out. It can project in every direction. When it projects forward, it overpowers others, it tries to dominate others, tries to kill others, becomes cruel. When it moves right side, it becomes supraconscious. It starts seeing things which are absurd, which are foolish, which are stupid. When it moves left side, then it starts seeing things, yourself as a big man, as a big Christ, or as a big Devi, or something. They are Adi Gurus, and I am very great personality. That's left side. When it moves backwards, that's the dangerous one. When people become gurus, which are ruining other people. When the ego moves backwards, then they become gurus. They themselves have lots of defects in themselves, and they try to pull people into those horrible stuff which is described as absolute narka. That's how is the movement of ego on all the sides. Now, when people try to use their right vishuddhi, that is to talk about themselves, is the worst of all. Whatever type of ego you may have, if you start boasting about it and talking about it, that it encircles, thickens the walls of ego so much that it is impossible to penetrate into that, because that such a person is completely satisfied with himself and he believes that he is true. And once he starts believing into a nonsense like that, is an impossibility. It's an impossibility to penetrate. So when you boast about these things or you talk big, be careful. You see, you know what I am, but
How many times do I say I am done? Even if I say once, it makes tremendous vibrations for you. But how many times do I say so? At the most, if you say something, I say to him, yes, but I don't say that. If I say it loudly, I don't know what may happen. The whole thing might be blasted with me. So one has to understand that Mahat Ahankara is the one that acts, that works, that really. Sometimes I shout at you, immediately all the bhoots run away. Just once I shout. Yesterday you saw all the bhoots that were coughing, they all ran. Yesterday just I stopped. So you should understand that now as you are realized souls, you can also do the soul. Use your right Vishuddhi to shout at yourself. Now will you please stop boasting? Will you stop talking all this nonsense? Will you stop showing off? Then it will. Now this thickening takes place by people who really are active, who want to do something about it. Not that they are not active, they want to do it. But they know only one way is to act through talking. They don't understand that there are inner ways by which you control it much more. Because they don't want to take to that, they take to this talking. And once they take to talking and they talk about it, the whole power flows up. But if they do not talk about it and keep it within themselves, it's all right, you can tell me about your experiences or anything, but if you start telling others and talking about it too much, then the powers that you have got will be all disappearing gradually. And you will just come down to absolutely lowest level. So one should not too much talk that I have this power, or I see this, or I do this, which is a very wrong thing. I warn you, don't try to show off. You can talk about my powers, it's all right. But don't try to talk about your powers. When it comes, of course, to talk to somebody who is a negative person, or to tell somebody, then you should say that we, not I, we have, some of us have felt this power within us. We have seen people. It may be you only, but you need not say I have. What you have to say, we. Then you become the Mahat Ahankara. When you say we, yes, some of us, we do. Like in Gregor's book also, I saw to it that he should not have many I's, but he should have we. We think, we do, we. Means the whole collective being, the whole collective organism, living organism of Sahaja. So you should say, yes, some of us have got. That means you put yourself down, but put all others above you. Say, yes, some of us have, I know some people have this. That's the way one should do it. Because if you have to overpower your ego, you must allow it to spread into everybody else. That's how you will make it perfectly alright. Make it spread. We all Sahajogis. We all. But that pride is not there. I have seen that pride is not there. Still it is very individualistic. If you start thinking we Sahajogis, then what happens? That you become one person, one organization. But the person will look down upon other people. Will see that this person is low, that person is high, that person is there. But he will not think we, the Sahajogis, how beautiful we are. We, the body of Sahaja, how beautiful we are. So always think in the words of we. So your ego will become much less, much less, much less. And the same ego which looked so funny and absurd will form tomorrow, the Ekadashi. Today's individual ego will merge into Ekadashi. But we all must remember to say we all the time. This is what is today's day is great day for us to change, because the sun has changed its mood now. Sun is coming this side. So let us welcome the sun coming the north now, this way. And for Australians to say that though the sun has gone, let us establish the sun, the domain of sun within ourselves. Because sun never disappears from our inside. So that is how we have to take a mood by which we should think of one personality. All of us together. All of us together. And anybody tries to be something separate or different, he'll drop it. I'll drop it. Whatever it will drop it. So you just don't worry.
Anybody who tries to be singled out or anything, everybody must do whatever they like to nurture the whole, to help the whole, to emancipate the whole, but not to in any way put anyone down or less. Because this is not the way the Sahaja Yoga is. Sahaja Yoga only works in collectivity. And the one who has developed this permeating spirit is a real Sahaja Yogi. Who has not is not. Whatever you may think of yourself, I have nothing to say. But this permeating personality, which moves from places to places, whether you talk or not, like your mother is, whether I meet you or not makes no difference, but I am permeating through all of you. By little things also I am there with you. So like that, try to permeate into each other and see the beauty, and you will enjoy yourself the best, because that is the biggest thing. That's the biggest thing that is to be achieved. Because this ego, makes you like a nutshell, and you just cannot have a rapport with that beauty of permeation. And just see how the notes move into each other. It will be a great idea today. It's a great thing today we have to having puja dhulya. Like the dhulya means the dust. And one day I had written in childhood a poem, I remember. Very interesting poem it was. I don't know where it's lost, but we said that I want to be like a dust particle, which moves with the wind. It goes everywhere, can go sit on the head of a king, or can go and fall at the feet of someone. It can go and sit on a little flower, and it can go and sit everywhere. But I want to be a particle of dust that is fragrant, that is nourishing, that is enlightening. Like that. I had written a very beautiful poem where I must have been about 7 years of age, I remember, to be a dust particle. I remember that very clearly, long time back, that I should be a dust particle so that I'll permeate into people, which is a very big thing to become a dust particle of that kind. To that whatever you touch, you see, that becomes a level. Whatever you just feel, that has fragrance. It's such a great thing to be like that. And that was my desire, and it has been achieved. At that young age, I had this idea of becoming a dust particle, and today just while talking to you, I remembered that I wanted to be that, and that is what this place is. And Raoul is like that. She's a very simple woman, and she lives like a very simple person, but she has a sense of permeation. And now there are so many Sahaja Yogis yesterday who came. I'm sure they'll take it up, Sahaja Yoga, very well. There are lots of Sahaja Yogis from Dhulya now, and I'm sure there are going to be more people. I hope you have met all of them. Make friends with all of them. Try to know them, who they are. They may not know English, so get somebody to translate. Talk to them and be nice to them. Be friendly with them. I want you to meet them for permeation. You should know who are the people here, who are in Nasik, because somehow we never meet the Sahaja Yogis, you see, who are in that particular place. And when we go back, we have only 1 or 2 addresses. It's not a good idea. Try to see how many people there are. Ask about their questions about them and all that. This permeation is only possible when your ego starts permeating all around. This is the way to overcome the problems of the right side, and that is how to worship Saraswati. Because Saraswati has a veena in her hand, and that veena is the primordial instrument which she plays, like music. And the music penetrates into the heart. You don't know how it goes into you and how it works out. And that's how a person who is a Sahaja Yogi should permeate like music into everything. She has so many qualities, as I told you, which cannot be described in one lecture. But one of the greatest quality of hers is that she ends up into subtler things. Like the Mother Earth will end up into fragrance. Music will enter into melodies. Like that, whatever she creates ends up into something later. Matter, whatever she produces, ends up into aesthetics. If matter does not have aesthetics, then it is gross. Like that, everything. Now, you will say, what is water? Water becomes the river Ganges.
These are the subtler. So the matter gets into subtler things because it has to permeate. It has to permeate. So everything, whatever it is, and the best of all is the air. That air becomes the vibrations. So you can see how whatever has come out from this matter, from these 5 elements, becomes that subtle thing. Of course, the left side and right side both work it out, because the love has to work on this, and when love acts on matter, it becomes that. And that is how one has to look at your own lives to make it a beautiful combination of love and matter. May God bless you. आता धुळ्याच्या सहयोगांसाठी असं सांगायचंय की आता बरेच लोक काल पार झालेले दिसले, आणखी थोडं सिरियसली पण सहयोगात येत आहेत असं वाटलं. तेव्हा धुळ्याच्या लोकांनी मात्र काळजी घ्यायला पाहिजे. राहुलबाईंनी पुष्कळ मेहनत केलेली आहे. त्यांचं घर इथे आहे, तुम्हाला माहिती आहे. तिथे सगळ्यांनी रविवारी सकाळी अगदी व्यवस्थितपणे ध्यान हे केलं पाहिजे. तसंच घरी रोज बैठक पाहिजे. बैठक जर तुम्ही केली नाही तर सहयोगी जमणार नाही. तुमच्यावर अवलंबून आहे. जितकी तुम्ही बैठक कराल, जितकी तुमच्यामध्ये गहनता येईल, तितकं सहयोग वाढणार. जर तुम्ही स्वतः मेहनत नाही केली तर सहयोग वाढणार नाही आणि तुम्हाला सहयोगाचा काही लाभ होणार. म्हणून रोज अगदी न चुकता सकाळ संध्याकाळ बैठक ही पाहिजे. सकाळी जरी थोडा वेळ असला तरी संध्याकाळी व्यवस्थित आरामात बैठक पाहिजे. हळूहळू तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, तुमच्याजवळ पुष्कळ टाईम वाचू लागेल. कारण बाकीचं तुम्हाला काही आवडणारच नाही. इकडे जायचं, तिकडे जायचं, गप्पा मारायच्या, फालतूच्या गोष्टी तुम्हाला काही आवडणार नाही. नको रे ते असं उगीच्या गोष्टी करत राहतात. उगत तुम्हाला वाटते काय बसून राहिलेत सगळे बेकारचे लोक, यांना काही समजत नाही, उगीच आपला कशाला इथे वेळ घालवायचा. तेव्हा तेही सुटू. आणि त्याच्यानंतर मग तुम्हाला आश्चर्य की जसे तुम्ही जमू लागा, जसे तुम्ही मुळात जाल. मुळं 2-4च असतात, पण ती जेव्हा खोल जायला लागतात झाड वाढू लागतं. असा सहयोग वाढताना तुम्हाला दिसेल. म्हणून माझा तुमच्यावर अनंत आशीर्वाद आहे. काल मी धुळ्याच्या लोकांना खूप समजावून सांगितलं आहे, पण तुम्ही सगळ्यांनी खूप मेहनत केली पाहिजे, खूप पॉझिटिव्हली राहिलं पाहिजे, म्हणजे कार्य होणार. बरं झालं. आप लोगों के प्रेम की गहराई देखकर जी भरा. इस कलयुग में तो आपको पहचानना बहुत कठिन है, क्योंकि हम अपनी माँ को ही नहीं पहचानते, तो फिर हमें पहचानना तो और भी कठिन हो जाता है. लेकिन इस रंगभूमि की गहराई आप लोगों में काम कर रही है. इसलिए मैं देखती हूँ जो भी यहाँ से सहयोगी आता है वो बड़ा गहरा बैठता है, बड़ी गहराई में उतरता है, और बड़ा आश्चर्य होता है कि जहाँ मैंने बहुत कुछ दिन बिताए, बहुत कार्य किया, वहाँ लोग तो बहुत हैं, लेकिन इतनी गहराई में और आपस का मेल भी इतना सुंदर नहीं है जैसे यहाँ पर है. ये भी एक रंगभूमि की मैं कहती हूँ बड़ी विशेषता है कि आपसी मेल और आपसी प्यार बिल्कुल निर्वाज, निस्वार्थ इस तरह से देखा जाता है. ये सब देख करके आपको पता नहीं मुझे कितना आनंद है. और अब चाहती हूँ कि आप लोगों का कार्य और बढ़े और जन जन में ले जाए, क्योंकि ये भूमि आप जानते हैं कि माँ को बहुत प्यारी है. आज आपने कहा था कि सरस्वती का पूजन होगा. ये बहुत नितांत आवश्यक है कि वंगदेश में सरस्वती का पूजन, क्योंकि यहाँ देवी की कृपा रही और देवी के प्यार की वजह से आज जो सस्य श्यामलाम भूमि आप देख रहे हैं कि इतनी हरी भरी है. लेकिन यहाँ की जो दरिद्रता है, यहाँ पर जो लोगों को परेशानियां हैं, उसकी वजह यह है कि सरस्वती की वंदना जो भी की गई वो बहुत ही सीमित तत्व करते हैं. महासरस्वती में नहीं, सिर्फ सरस्वती की वंदना हुई कि जिसमें हम
कला को बढ़ाएं या हम बहुत विद्वान बने। यहाँ से एक विद्वान लोग हुए हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए हैं। बहुत कुछ लोगों ने अपने शैक्षणिक स्तर में बहुत प्रगति की, और देशों से यहाँ के लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान प्रगल्भ हैं। ये सब होते हुए भी यहाँ गरीबी क्यों है? उसका एक सूत्र निकालना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर गरीब भी क्यों हैं और किस वजह से हमारे अंदर ये एक तरह से घृणा उत्पन्न हुई है कि जिसके पास थोड़ा सा पैसा आया उसके प्रति घृणा करने से या झंडे दिखाने से गरीबी कभी जाने। उसके लिए समझना चाहिए कि क्या सूत्र हमारे अंदर नहीं है जो हमें पाना चाहिए। सरस्वती आप जानते हैं कि सहयोग के हिसाब से महासरस्वती का कार्य राइट साइड। तो जब वो स्वादिष्ठान चक्र पे कार्य करती है और जब ये स्वादिष्ठान चक्र लेफ्ट साइड में जाता है तब ये कलाएं आदि सब उसका प्रादुर्भाव होता है। संगीत के बारे में क्या कहना, और कोई सा भी कला का क्षेत्र है जो कि अभी तक बंगाल में नहीं आया है। हर इसमें यहाँ तक कि फिल्मों में तक, नाटकों में, हर तरह के कलाओं में, नाट्य कला में, संगीत कला में और शिल्प कला में, हर कला में बांग्लादेश मशहूर है और इनसे बढ़ के कहीं कलाकार है नहीं। छोटी सी भी चीज बता दीजिए फौरन उसको कर लें। यहाँ के जो स्वर्णकार हैं वो भी बड़े मशहूर लोग हैं। इसका कारण है कि उस सूक्ष्मता तक पहुंचे हुए हैं जिसे कला है। वो सूक्ष्म कला क्या होती है कि जो सब दुनिया में मानी जाती है कि ये कला है, वो एक तरह से ऐसी बनती है जिससे बहुत ही ज्यादा दिव्य ऐसा प्रकाश है। अब ये दिव्य प्रकाश दृष्टि में दिखाई नहीं देता, किंतु ये चैतन्य स्वरूप है। कोई सी भी चीज जो बहुत ही सुंदर बनती है और जिसको दुनिया में लोग बहुत ही ज्यादा मानते हैं कि ये बहुत सौंदर्य पूर्ण है, एस्थेटिकली बहुत रिच है, वो देखते हैं कि उस जगह आप हाथ उसकी ओर करके देखें तो उसमें से चैतन्य, उसमें से चैतन्य। अगर कोई रियलाइज सोल हो तो वो अगर कोई भी मूर्ति बनाए या कोई भी कला का कार्य करता है तो उसमें से आप देखते हैं कि चैतन्य। तो वजह ये है कि जो लोग यहाँ रहते हैं ये बड़े भक्तिमय हैं, अंदर से गहरे लोग हैं। और यहाँ पर जो भी कला हो, कोई सी भी कला ले लीजिए यहाँ की, वो ऐसा नहीं कि विश्व के दुनिया के कोई लोग उसे समझ नहीं सकते या उसको पसंद नहीं कर सकते, अप्रिशिएट नहीं कर सकते। ऐसी कोई बंगाल की कला, चाहे यहाँ की चित्रकला हो, यहाँ तक कि सिनेमा तक, नाट्य तक, बंगाल का सब एकदम लोग कहते हैं कि परफेक्शनिस्ट है, बिल्कुल पूर्णता पहुंचे हुए। जब इतनी हमारे अंदर एक तरफ प्रगति हो गई तो दूसरे तरफ का स्वादिष्ठान हम नहीं चला, और वो भी एक स्वादिष्ठान जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हम सोचते हैं कि जैसे कि पढ़ना लिखना ये सब चीजों में हमने खत्म कर, पर इससे आगे की कोई स्थिति है इस और हमारा ध्यान नहीं, और इसी वजह से आज ये असंतुलन है। देखने में इतना समृद्ध देश है, इतनी कलाकारी है, सब कुछ है, और तो भी यहाँ परेशानी है। और लोग कहते हैं कि सरस्वती का और लक्ष्मी का मेल होता है। ये बात थी कि सरस्वती और लक्ष्मी की स्थिति में नहीं होता था, और महासरस्वती में इसका मेल हो। महासरस्वती में मेल होने का मतलब ये है कि उस जगह आप जहाँ जो सब चीज कर रहे हैं उसकी गहराई में उतर के आप सोचते हैं कि आखिर क्या बात है कि हम इसका लक्ष्मी से मेल नहीं, महालक्ष्मी का मेल क्यों नहीं। सहयोग में आज्ञा चक्र पे दोनों का मेल होता है और डिसाइड।
इसकी अगर आप कार्य शक्ति देखें तो जबरदस्त है, किंतु उसका परिणाम वो नहीं होता जो हम लोग चाहते। इस पर अगर आप आज्ञा चक्र पे आए तो फिर आप विचार करने लगते हैं कि क्यों हमें आज तक वो स्थिति प्राप्त नहीं हुई जो कि इतनी कलाकारों को मिली है या इतने संपन्न सुबुद्ध लोगों को मिली, और क्यों हम लोग गरीबी में रहते। इसमें सोचने की बात यह है कि जब तक हम उस स्थिति में नहीं पहुंचते जहां हम सम्यक दृष्टि से दोनों चीजों को देखें, तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते। कला जो है उसका लक्ष्मी से मेल करने के लिए हमें सम्यक दृष्टि चाहिए। तो एक जो हमारे अंदर बड़ी कमजोरी है, बंगालियों के लिए कहा जाता है कि जिद बहुत जिद्दी लोग, कोई चीज कला को मैंने पसंद कर दिया तो वही निकलते की चीज का हाथी बनाने लगे तो हाथी बनाते गए, घोड़ा बनाने लगे तो घोड़ा बनाने लगे, एक तरह का संगीत गाएंगे तो वैसा ही गाएंगे, मतलब कलाकार। अब उनको अगर आप कहिए भी कि आप इसको बदल दीजिए तो मान लेते हैं, एकदम गुस्सा आ जाएगा उसको, जो सोचते कि उनकी कला का आदर ही नहीं है। तो अगर आज्ञा चक्र पे आदमी विचार करे तो जिद जो है आज्ञा चक्र को पार, ये अब जिद है। हम बंगाली हमारे यहाँ रवि लागू हो गए, हमारे वो हो गए, हमारे यहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट हो गए, सबके नाम से हम अपने को सोचें कि हम भी वही हो, तो वो बात नहीं समझ लेना कि हम वो नहीं हैं। अगर उनकी ओर नजर करिए तो उनमें जिद बिल्कुल नहीं। और ये जो जिद हम लेकर के बैठे हुए हैं कि हम ही बड़े महान हैं क्योंकि हमारे ब्रह्म देश में एक से किलोमीटर, तो आप उनके स्तर पे पहुंच नहीं सकते। हाँ, उनकी जो कुछ भी महिमा है उस छत्र छाया में पड़ सकते, लेकिन उससे अगर ऊपर उठना है तो इस जिद को छोड़ देना चाहिए कि हम तो ऐसे ही हम यही करेंगे, इससे ज्यादा हम नहीं करने वाले, और कोई हम इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं, सो वो बोल नहीं सकता। अब कॉम्प्रोमाइज पे बात आई तो मैं ये नहीं कहती कला का विनाश करना, इसी तरह से भी कला का विनाश करना, लेकिन कला के बारे में एक सम्यक स्वरूप से विचार करना है। मैं इसलिए प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ कि एक तो जो हमारे अंदर आलस्य है, उस आलस्य से भी जिद चलता है। जब आदमी आलसी होने लगता है तो वो बड़ा जिद्दी होता है, फिर वो ये नहीं सोचता कि मैं आलस्य की वजह से ही जिद कर रहा हूँ, क्योंकि कोई नई चीज करने में मुझे श्रम तो उठाने पड़ेंगे। अब जहाँ मेरा हाथ चलता है वो तो आसानी से मैं बैठे बैठे कर दूँ, और माता जी कह रहे कि थोड़ा बेटे इसे जरा बदल डालो तो ठीक हो जाएगा, तो ये तो मैं नहीं कर सकती। इसमें एक तो जिद है और जिद के पीछे में आलस्य। कोई सी भी नई चीज सीखने के प्रति जरा सी वृत्ति हमारी धीमी है, और ये धीमी वृत्ति की वजह से हम लोग उस नई चीज को नहीं सीख सकते, जिससे कि लक्ष्मी का जरूर हमें मिलाप हो सकता है। जैसे मैं पहले थी किसी इसमें ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ मैंने बताया कि अच्छा बंगालियों से कहो कि तुम ये जो पर्सेस बनाते हो इसके इतना ज्यादा मत बनाओ, उसके बस एक लाइन में अच्छे से बना दो, वही चीज बहुत लोग पसंद है। ये नहीं है, हम तो बीच में बनाएंगे, उसको तो हम बनाएंगे जैसा, वो जैसा आप कहेंगे वैसा हम नहीं कर सकते, हम इसमें वो चीज कर ही नहीं सकते। तो कोई सजेशन आप नहीं दे सकते, जो वो करेंगे उसी को रखेंगे, उसके 2500 चीजें बना के रख दीजिए आप, वो कोई बिकेगा नहीं, तो कहेंगे क्यों हमारे पास स्टॉक है, नहीं बिका तो नहीं बिका, हमारे पास स्टॉक है, अब उसी कमर में बैठे उस पर सूझबूझ होनी चाहिए। अब सहयोग में क्या है कि मनुष्य की बुद्धि ही खुल जाती है, उसकी बुद्धि खुल जाती है, उसका आज्ञा खुल जाता है, उसकी जिद तो पहले कम हो जाएगी कि मैं इसकी जिद करूंगा कि यही ठीक है और इससे अलावा कोई चीज ठीक ही नहीं, जो हम करते वही ठीक है। उस जिद के खुलने से बड़े लाभ हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा बहुत लोगों में अनेक तरह की जिद होती है, और उस जिद में वो इस तरह से मारा जाता है कि उसके सारे ही जीवन पर ही उसका परिणाम है कि हम ऐसे हैं और हम ऐसे ही रहें। नहीं, हमें परिवर्तन करना,
और वो परिवर्तन आप सहज से बिल्कुल बहुत ही सहजता पूर्वक प्राप्त कर सकते। जब सहजता पूर्वक आपने उसे प्राप्त किया तब आपको आश्चर्य के सहजता पूर्वक ही लक्ष्मी का मेल भी आ जाता है। मैं तो ये आर्टिस्ट लोगों में खास चीज देखती, इतने वृद्धि होते हैं उनसे जब कह दीजिए कि भाई जरा सा ऐसे जरा बदल दो, नहीं हम तो यही करें, यही हमें सूट करता, इसी को मैं फिर चाहे सुनने वाले उठ के चले जाए कोई हर्जा नहीं, और हम तो यही गाएंगे और हम ऐसी कहेंगे या ऐसी बनाएंगे, ये करेंगे। तो आज्ञा चक्र की ठीक करने के लिए पहले जो हमारे अंदर ये विचित्र तरह का अहंकार आ गया है कि हम जो करते आए हैं और जो हमने किया है वही ठीक है और जिस तरह से हम करते हैं वही ठीक है, ये ढर्रा जो हमने बना लिया, ये इस ढर्रे को बदलना चाहिए। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि हमने जब इसमें हम किसी धर्म समझ लीजिए, हम ब्रह्मो समाजी हैं या हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं, क्रिश्चियन है, फलाना ठिकाना सब है, आप कुछ है ही नहीं, आप तो इंसान ही है, आप पैदा ही इंसान हो। ये तो आपने ऊपर अपने ऊपर एक ब्रांड लगा लिया कि मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना। आप बंगाली भी नहीं है और मराठी भी नहीं है, आप सब कुछ जो है वो सब सिर्फ इंसान। ये ब्रांड लगाने से और भी प्रॉब्लम कि मैं बंगाली हूँ तो मैं मराठी हूँ, मैं फलाना हूँ तो ठिकाना हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं जैन हूँ, ये सब ब्रांड लगे और वो ब्रांड इतने महत्वपूर्ण हो गए कि उसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता। वही महत्वपूर्ण चीज हो गई, उससे आगे पीछे में कोई चीज और है ही नहीं। ये और एक आज्ञा की पकड़, और ये पकड़ छूटना बड़ी मुश्किल है। जब तक ये पकड़ नहीं छूटेगी आपका अंधापन नहीं जा सकता, क्योंकि आप उसी एक माहौल में देखते हैं हर एक चीज को कि ऐसी हो तो ठीक है। ये बात आप लोगों में इस देश में, इस वैसे प्रदेश में भी बहुत है, प्रदेश में तो इससे अधिक है, क्योंकि वहाँ तो जो कुछ भी उनके दिमाग में भर दीजिए कि ये चीज अच्छी है बस हो। वहाँ तो ऐसे बैठे हुए लोग हैं चिकित्सक, क्रिटिक्स, कि वो कह देंगे ये कला ये ठीक है बस वो भी गई, वो कहे ये ठीक नहीं वो नहीं भी गई। वो एक है उसकी मान्यता होगी, दूसरी कचरा हो जाए, फिर दूसरे क्रिटिक्स आएंगे वो कहेंगे ये बेकार है वो अच्छी, तो उसको ले। मैंने अपने दिमाग से, अपने अपने स्वर से कोई सी भी चीज तय नहीं होती है। जो कुछ भी दूसरों ने आपके दिमाग में भर दी वही चीज है। और यही बात है कि हमारे दिमाग में भर दिया कि हम जो है इस ब्रांड के हैं, उस ब्रांड के हैं, बचपन से ब्रांड लगाते गए एक के बाद एक, एक के बाद एक, अंत में एक गली के आप हो गए, एक फैमिली के हो गए, एक माँ बाप के बच्चे हो गए, वो भी नहीं रह जाते। इस तरह से मनुष्य अपने पे ब्रांड लगाते हैं। उस ब्रांड से उसमें सबसे बड़े जो दोष होता है कि वो सोचता है कि मैं बड़ा भारी व्यक्ति अलग से एक व्यष्टि में बैठा हुआ, एक अलग व्यक्तिगत, एक इंडिविजुअल हूँ मैं, चाहे मुझे जो ब्रांड लगा उसने मुझे एक इंडिविजुअल बना। और यही जो है ये सत्य का जो तत्व है कि हम सब एक हैं, होल है, टोटलिटी है, संपूर्ण सारे कुछ हम एक हैं, इसके विरोध में पड़े। और जब ये तत्व उसके विरोध में पड़ जाता है कि मैं फलाने, मैं ठिकाने, ये देखिए इससे आप अलग अलग तो हो रहे हैं। जैसे आपने कह दिया कि मैं हिंदू तो मुसलमान हो गए 2 बार, फिर मुसलमान में भी 4 बार, फिर मुसलमान के 4 बार में भी 10 बार, ऐसे करते करते आप हो गए अलग, छूटते गए उस एक संपूर्णता से जो कि जीवन का लक्ष्य है जिसे प्राप्त करना। सो पहली चीज यह है कि सारे तरह के वैचित्र जिसे वैरायटी कहती है, ये तो जरूरी भगवान ने बनी, एक पत्ता दूसरे से नहीं मिलता, पर सब एक ही पेड़ पर घर है, सब एक ही विराट के अंग प्रत्यंग है, और जब सब हम एक ही व्यक्ति के ही सारे उस समष्टि में ही हमारी जब व्यष्टि जुटी हुई है तो अपने को अलग करने से हम अपनी मृत्यु ही कर लेते हैं। और इस तरह से सरस्वती का जो तत्व महासरस्वती में बदलना चाहिए वो नहीं। महासरस्वती में आदमी के जो विचार है, उसके जो दृष्टिकोण है वो बदल जाए। रोजमर्रा के
जीवन में भी वो बदलता है कि वो फिर देखने लगता है कि हम अब हो सब, अब हम सब एक। तब फिर वो जो कुछ भी बनाता है, जो कुछ भी करता है, वो ऐसा कुछ सुंदर बनाता है या ऐसा कुछ कार्य सुंदर करता है जो हृदय से ही इंसान उसको मान लेता है, हृदय से ही इसे वो कहता है कि ये बड़ी सुंदर है। लेकिन तो भी ये जान लेना चाहिए कि हमारे जो कुछ भी सरस्वती के कार्य हैं, कि जिसे हम सोचते हैं कि हम सरस्वती की पूजा करें, वो समर्पित होने चाहिए। अगर वो सरस्वती के कार्य परमात्मा के लिए समर्पित हो तो वो अमर हो। अब आप देख लीजिए कि जो काव्य संसार में अमर हो गए वो सारे भगवान का लिखे होता है। जो कविताएं हैं, जो गाने, अब ये देखिए आजकल नए गाने चल पड़े, सिनेमा में नए नए गाने आते ही खत्म हो जाते हैं। हम लोग तो वही गानों को सुनते हैं, वही चीजें दोहराते हैं जो कबीर ने लिखे थे, ज्ञानेश्वर ने लिखे थे। और विलायत में भी मैं देखती हूँ कि जो विलियम ब्लेक ने लिखा था उसे ही लोग मानते हैं, शेक्सपियर ने जो लिखा था उसे ही लोग मानते हैं। ये सब आत्म साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार। तो उनके जो आत्म साक्षात्कार से प्राप्त की माँ सरस्वती की शक्ति थी, उस शक्ति से उन्होंने जो भी लिखा उसका प्रकाश और ही तरह का, उसमें कोई भी तरह की ऐसी बात नहीं थी जहाँ आप कह सकते थे कि इनके कुछ ऐसे कुसंस्कार उसको दिखाई देते। ऐसे संस्कार थे कि जो विश्व को एक कर। तो जब आप सहयोग में उतरते हैं तो महासरस्वती के तत्व में उतरना है, सरस्वती के तत्व से नहीं चलना, क्योंकि सरस्वती का तत्व जो सीमित कर देता है आपको, जो आपकी कल्पना ऐसी है। पर सरस्वती का तत्व अगर बीज रूप है तो उसका जो वृक्ष है वो महासरस्वती। जब तक इस बीज को आप महासरस्वती नहीं बनाएंगे तब तक आपका मिलन हो ही नहीं सकता महालक्ष्मी से। और महालक्ष्मी का जो प्रदान है आपके अंदर वो ये है कि आप आत्म साक्षात्कार होता है। और तीसरी चीज जिसे कि आपने काफी प्राप्त किया हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं महाकाली का संबंध। इन तीनों का मिलान आपके आज्ञा को, और इस आज्ञा को आपको लाना चाहिए। हर तरह का सूक्ष्म में एक तरह का ईगो जगाना, अपने और दृष्टि करें कि आखिर मैं इस चीज को क्यों मानता हूँ। मेरे बाप दादा ने भी इसको माना, उनके बाप दादा ने माना, और मैं इसी एक सीमित चीज में बैठा हुआ हूँ, और सारे संसार को मैं कैसे प्रकाश। मैं तो अभी मेरे सबसे कहती थी कि देखिए आप अपने ऊपर उन्मुख होइए, अपने और देखिए। मुझे तो बहुत से लोग मानते ही हैं, देवी स्वरूप मानते हैं, सब कुछ है, हृदय से मानते, पर इससे मुझे क्या लाभ हुआ? मैं जो हूँ सो हूँ ही, इसमें क्या विशेष? जो हूँ सो हूँ, मैंने कुछ किया तो नहीं। आप लोगों की विशेषता है जो आप ऊंचे स्तर से उतर आए, सरस्वती तत्व से आप महासरस्वती में उतर आए, तो ये आपकी विशेषता है और ये आपने कुछ पाया हुआ है। मैंने तो कुछ पाया भी नहीं और कुछ किया भी नहीं। मैं सीधी बात आपसे बताती हूँ कि जब मैं देखती हूँ कि आप मुझी पर अभिभूत हैं, तो मुझे लगता है कि ये इसी में कहीं समाधान न कर ले कि भाई हम माँ को बहुत मानते हैं। आपको अपने को मानना होगा, अपने को मानना होगा और अपने को ऊंचा करना होगा। ये नया जमाना आया है एक उसी तरह का, जैसे मैं कहती हूँ, अभी मैंने बॉम्बे में बताया कि बोधिसत्व का है। इसमें जो आप अब बुद्ध हो गए, आपको बोध हो गया, आपको पता हो गया कि क्या है सत्य। अब इस सत्य के लिए आपको एक दीप जैसे प्रज्वलित कर दिया गया। अब उस दीप को आपको हजारों दीपों को जलाना है, ये बोधिसत्व। अगर ये कार्य आप नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए, हमारे लिए तो एक कार्य सारी मेहनत की, क्योंकि हम जो है सो हमको प्यार करने से क्या विशेष है। अच्छा लगता होगा, हम माँ को प्यार करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है, किंतु मैं आपकी दिशा में नहीं करती।
माँ को प्यार, मुझे आप लोगों को प्यार से इतना हो मेरा एकदम जी भरा है और कुछ बोलना चाहती थी तो बोल ही नहीं पाई। लेकिन इससे आगे जो स्थिति है वो ये है कि प्रसन्नता से भी आगे एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल निरानंद, और वो निरानंद तभी होगा आपके माँ को जब वो देखेगी कि मेरे बच्चों ने मुझसे भी ज्यादा काम, मुझसे भी ज्यादा उनको शक्ति मिल जाए। माँ तो यही चाहती कि बच्चे हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाए, पर ये ऐसे छोटी छोटी चीजों में जो अटके हुए हम लोग हैं इसको छोड़ना। और ये भंगचूरी में ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा है, और भी लोगों में मैं देखती हूँ कि इसी प्रकार एक छोटी छोटी चीजों में हम लोग अटके हुए। इसको तो मैं कुसंस्कार ही कहती हूँ। अच्छे संस्कार होते हैं कि शादी के वो एकदम दिल खोल देता और फूल की तरह महकने लग जाता है। अब दूसरी बात जो है महासरस्वती की यह है कि कार्यान्वित हो। महासरस्वती कार्य में आप कार्यान्वित हो। महाकाली तत्व में आप अब्सॉर्ब करते हैं, लेते हैं, उसको अपनाते हैं। लेकिन वहाँ सरस्वती में आप जो है कार्यान्वित, महाकाली में आप इच्छा करते हैं, उस पे सृजन भी कर सकते हैं। इच्छा करते हैं कि ये होना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। किंतु उसको कार्यान्वित करने का कार्य जो है वो महासरस्वती कार्य। आप कहेंगे माँ मैं चाहता हूँ कि सहयोग कार्य और फैल जाए, बहुत अच्छी बात, चाहत बहुत अच्छी आपकी, लेकिन इस मामले में आपने क्या किया? तो उस मामले में आपने कौन से कार्य किए? आप अपने ही बारे में तो सोच रहे हो कि भाई ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, और अपने बारे में वही प्रश्न है कि मेरा बाप ऐसा, मेरा बाप भाई वैसा है, उसकी बीमारी नहीं ठीक हुई, उसका फलाना नहीं ठीक हुआ, ठिकाना नहीं ठीक। तो आपके कौन से ऐसे कार्य किए हैं जिससे महासरस्वती का तत्व आपके अंदर पूरी तरह से प्रस्फुटित हो, या आप अपने सोचा चाहिए। हमने कितने लोगों को जागृति दी, हमने कितने लोगों को सहयोग के बारे में बताया। मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने बताया कि यहाँ के जो बहुत से युवा शक्ति के लोग हैं उन्होंने बड़े पोस्टर्स लगाए, रात भर मेहनत की, सुन के मैं बहुत खुश हूँ। और अभी एक साहब आए थे, बड़े भारी जर्नलिस्ट, वो कहले साहब मुझे तो बड़ा इसका प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर कि मैंने देखा कि बहुत से जवान लड़के ट्रेन में मेरे साथ रात को 1:30 बजे सफर कर रहे थे, और हर स्टेशन पे कुछ लोग उतर जाते थे और फिर अगले स्टेशन पे कुछ लोग उतर जाते थे, बड़े शांत। मैंने कहा तुम लोग कर क्या रहे हो? पहले माँ के पोस्टर्स लगा। पहले मैंने ऐसे लड़के देखे नहीं आज तक, इतने अच्छे जवान पढ़े लिखे लड़के इतने शांतिपूर्वक कार्य कर रहे थे, और उनके साथ कुछ लड़कियां भी थी, बड़े ही पवित्र भाव से सब बैठे हुए थे। तो मैंने फिर पूछा सर के बारे में, और मैं तो बहुत ही उससे प्रभावित। तो कार्यान्वित होना मतलब है कि जो हमारी इच्छाएं हैं उसके लिए हमें कार्य करना, जो हम सोचते हैं उसको हम अपने कार्यक्रम में जोड़ें, ये हमें करके दिखाना है। नहीं तो सिर्फ हवाई बात रहेगी, हवा में ही सब चीज रहेगी कि मैं ये करना चाहता था, मैं वो करना चाहता था, ऐसा करना चाहता था। चाहत खत्म हो जाएगी जब आप कार्य में पड़े, तब आप जानेंगे कि वही चाहना चाहिए जो हो सकता है, और जो नहीं हो सकता है उसकी चाहत करने से तो दुर्दशा। और वही बात है कि हमारे यहाँ आजकल आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा बेकार। अब यहाँ रईस लोग भी बहुत हैं और गरीब भी। अब रईस लोगों के प्रॉब्लम जब मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है इनका भी वही प्रॉब्लम है जो गरीबों कि वो कहते हैं कि देखिए माँ यहाँ पर बड़ा लेबर प्रॉब्लम, और इसीलिए हमारी फैक्ट्रियां बंद हैं। अब रईसों को ये सोचना चाहिए कि लेबर जो है तुम्हारा अंग प्रत्यंग है, लेबर के बगैर आप कर तो सकते नहीं। आप तो हाथ भी नहीं चलाना चाहते, कुर्सी पे बैठे रहते हैं, मोटर से जाएंगे कुर्सी पे बैठे। आपने लेबर के लिए किया क्या? सिर्फ पैसे से नहीं होता। उन लोगों ने भी झंडा उठाया, आपने पैसा दे दिया, फिर वो झंडा उठा कर चले आए, फिर आप पैसा दे दिया, उसका कोई अंत नहीं। उनके समाधान के प्रति आप कार्यरत हुए, पहले पता लगाइए। जैसे अभी
बॉम्बे में था तो एक साहब ने आके कहा, मैंने कहा तुम मराठियों से काम लेना है ना, पहले गणपति का मंदिर बनाओ। दिवाली के घर सबके घर में जा करके उनको कुछ दो, दिवाली में हम दिया पहले उनकी संस्कृति सीखी। अब यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, उनको यही नहीं मालूम कि इनकी संस्कृति क्या है, इनके संस्कृति में लोग किस चीज को मानते हैं और किस चीज को समझना चाहिए। तो गर्व यहाँ के रईस लोग हैं या जो लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चलाते हैं, वो अगर बंगालियों की मनस्थिति को समझे, मैं तो 1 मिनट में पहचान गई। और बड़े इतने हृदय वाले लोग हैं कि आप इनके साथ एक कप चाय पी लीजिए तो वो आपके जन्म जन्म के दोस्त हैं। पर अगर आप अकड़ दिखाइएगा तो आप बड़े दुश्मन हैं। ये बंगालियों की खूबी है। आप क्यों अकड़ दिखाते हैं? उनके साथ रहिए, उनसे बोलिए, उनके प्रश्न पूछिए, तो जानिए। इसको मैं एनलाइटेंड एंटरप्रीनियर कहती हूँ। अब आप एनलाइटेंड हो गए, अब आप सहयोग में आ गए। अब आपको चाहिए कि इनके घरों में जाकर देखिए इनको क्या प्रश्न है, इनको क्या आप जरा सी मदद कर दीजिए, वो आपके लिए जिंदगी भर के लिए मिलते हो गए। क्योंकि मैंने अपने स्वयं अनुभव में देखा कि हमारे पति जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे, उसमें बड़े पहले प्रश्न थे। मैंने उनसे कहा कि इसकी एक फैमिली बनाओ और पहले उनकी स्टडी करो। कोई भी आए, कलकत्ते से भी यूनियन वाले आते तो घर में उनको ब्रेकफास्ट खिलाते थे, उनसे बात करना, उनसे पूछना भी तुम्हें क्या प्रश्न है, क्या है। फिर उनको घर के प्रश्न का ये सॉल्व हो सकते हैं। आप अपने दफ्तर की तरफ से कुछ ऐसा इंतजाम कर दीजिए उनको घर मिल जाए, फिर ये हो जाए। फिर उनको आप बच्चों के पढ़ने के इंतजाम कर दीजिए। जरूरी नहीं कि उनको ऊपर उठा पैसे दे, क्योंकि लोगों को पैसा मिल जाए तो सीधे चाह जाएंगे शराब पी लेते या 2-4 औरतें रखें, उससे कोई फायदा होने वाला है। पर उनकी अगर आप वाकई गहराई से उनकी मदद करें और उनके हृदय को समझे और सोचे कि ये हमारा अंग सत्य है, आपकी उसमें कोई ढोंग होना चाहिए, उसमें कोई झूठ बात होनी चाहिए, पर हृदय से आप ही सारा कार्य करें और उनको हृदय को जीत लीजिए, तो सारे आपके प्रश्न जो है छूट जाए। ये देश इतना राम सुखराम है कि यहाँ तो वर्षा होनी चाहिए लक्ष्मी, लेकिन यही बड़ा भारी प्रश्न है। यहाँ के लोग महासरस्वती पे नहीं उतरते हैं, सिर्फ सरस्वती तक ही सीमित है। महासरस्वती का तत्व जब आपने अपना लिया तो आप इस मामले में कार्य करें। इसके लिए जरूरी नहीं कि कोई आप 420 करिए, ढोंग करिए, कुछ करिए, अपने आप सब चीजें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि ऐसे भी आप सहयोगी हैं, सहयोगियों के सारे कार्य ऐसे ही सरल सहज हो जाते हैं। पर सहयोग के जो नियम है उसको जरूरी अपनाना पड़ता है, और उसमें से ये कि अपनी शुद्धता या अपनी जो एक दृष्टि है, इंडिविजुअलिज्म है, उसको छोड़ कर और फैलना और सब लोग उसका प्रसार करें। जब तक आप अंदर से उठेंगे नहीं, आप बाह्य में कितना फैलना चाहे फैल नहीं सकते। इसीलिए सहयोग में ध्यान धारणा बहुत जरूरी चीज है। ध्यान करना चाहिए। सवेरे 5 बजे आप उठिए, ऐसा मैं नहीं कहता, पर सवेरे 5 मिनट आप ध्यान करिए, शाम को आप 10 मिनट ध्यान करिए। उसमें ये नहीं कि एक दिन आप चूक गए तो कोई बड़ी गलती हो गई, पर इससे सफाई होती रहेगी और आप बढ़ आशीर्वाद। उसमें से मैं ये कहती हूँ कि आपका पूरी समय रक्षण, पूरी समय आपका रक्षण होता है, आपको पूरी समय मार्गदर्शन होता है और आपका पूरी समय मनोरंजन होता है। कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें मनोरंजन नहीं। मैं कल देख रही थी, सब सहयोगी बैठे थे, आपस में उनकी ठिठुरियां चल रही थी, आपस में जिसको कहते हैं लेग पुलिंग चल रही थी, आपस में हंस रहे थे, खेल रहे थे। बड़ी तबीयत मेरी खुश हो रही थी देख करके। कुछ उसमें किसी को दुख देने की बात नहीं थी और बस सब विनोद हास्य में, सब आनंद में, पूरी तरह से मनोरंजन। तो जिसमें मनोरंजन हो और जिसमें आपकी प्रगति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो, और जिससे सारे समाज का, देश का और विश्व का कल्याण हो, ऐसा ये महान कार्य सहयोग का है। तो इसमें आपको कार्यरत होना चाहिए। ऐसे को कहने को सहयोग 55 कंट्रीज में चला, और अभी भी जो तत्व है वो महासरस्वती के तत्व पे नहीं। सब लोग जो है, अधिकतर लोग अब भी सोचते हैं कि माँ को प्यार करो, माँ की सेवा करो, हो गया, माँ के पूजा में लगे रहो। ये तो ठीक है,
उससे थोड़ा बहुत लाभ होता ही है, उसमें शंका नहीं, लेकिन उससे असली लाभ नहीं होने वाला। उसमें आपके अंदर आपने कितनी कार्य की ये गाड़ी है वो देखना चाहिए। अब गहराई बहुत हो, समझ लीजिए आप बड़े गहरे भी हो गए, माँ का प्यार करना मान गया, चलो ये भी मान जाओ कि चलो हो गई गहराई, पर वो गहराई का फायदा क्या, जिसमें ऐसे गहरे घड़े का क्या फायदा जिसमें कोई पानी नहीं बना, वो ऐसे बेकार ही है, चाहे गहराई हो चाहे नहीं हो, उसका फायदा क्या, कोई फायदा नहीं। तो जिस चीज के लिए आपने गहराई बनाई है, उस गहराई का फायदा अगर उठाना है तो उसमें कार्य रखें, नहीं तो अपने गहराई के ये जो सर्टिफिकेट्स है इससे क्या फायदा होगा। उसे यह तो हो सकता है ठीक है, अध्यात्म में लोग आपको बड़ा साधु बाबा मानेंगे, भाई आप बहुत बड़े आदमी हैं, आपसे बहुत चैतन्य की लहरियां बहती हैं जैसे हम बैठे हैं, लेकिन हम तो कुछ करते नहीं, निष्क्रिय हैं, बेकार है। आपको तो कुछ करना चाहिए, अगर हम निष्क्रिय हैं तो क्या फायदा ऐसे जीवन का जो सिर्फ निष्क्रिय बना रहे। तो इसलिए कोई न कोई कार्य में लगना चाहिए। अब सोचना चाहिए आ गया चक्र पे कि अच्छा माँ ने कहा था तो कौन सी चीज हमें करनी चाहिए। अगर आप निर्विचार में जाएं तो आपको अंदर से ही प्रेरणा आए कि भाई ये तुम कर सकते हैं, ये हो सकता है, इसको करो। इसी तरह से सहयोग फैलने वाला है। तो यहाँ जो बहुत गहरे लोग हैं, और मुझे इसको देख के बड़ा आनंद भी हुआ कि सब बड़े गहरे लोग, और अब इस गहरेपन को हमें बांटना है। ये तो फायदा नहीं कि कुछ लोग हो जाए, समझ लो रविंद्र बाबू जैसे, तो बाकी के तो लोग वही रह जाएंगे। जैसे कि एक तालाब में कुछ कमल के फूल आ गए और उसमें कुछ कीड़े भी हो गए कि देखो हमारे तालाब में इतने फूल आए, तो आप तो कीड़े ही बने हुए, फायदा। तो अगर आप लोग हो भी गए, इतने फूल आ भी गए, कमल हो भी गए, तो भी दूसरों को उसका क्या फायदा हो। इसीलिए महासरस्वती का तत्व तो हमारे आज तक हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया था, इसीलिए मैंने अब शुरू किया है कि महासरस्वती का भी पूजन होना चाहिए। महासरस्वती तत्व में अपने देश में वेदों की रचना हो, उसमें भी कहा गया कि अगर आपको विद नहीं हुआ तो वेद देखें। वेदों की रचना हुई कि उन्होंने कहा कि जो ये पंच महाभूत हैं इस पर पहले कार्य करना चाहिए, देखना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए, उनकी जागृति करने के बाद फिर हम उसको इस्तेमाल कर सकते। उसी वजह से साइंस वगैरह अपने देश में आए थे। अपने देश में बहुत पहले साइंटिफिक रिसर्च हुआ था, और सब जो आज हम साइंस होते से कहीं अधिक अपने देश में साइंस था, क्योंकि वेदों की वजह से इन्होंने ये इतना भी पंच महाभूत है उस पर प्रभुत्व पा लिया। और आप भी पा सकते हैं, सहयोग से आप उस पर भी प्रभुत्व पा सकते हैं, पर आप हाथ तो हिलाएं, आप उधर ध्यान तो दें। नहीं तो ये कि माँ आप देखिए हमारी माँ बीमार है, अरे भाई तो तुम सहयोगी हो, तुम उसको ठीक कर सकते, तुम हाथ तो लगाओ, पहले देखो तो सही तुम ठीक कर सकते हो कि नहीं। अगर तुम नहीं ठीक कर सकते तो मेरे पास ले आओ। वैसी बात है, सब चीज माँ करे। कोई अगर बीमार होगा तो माँ करेगी, कुछ तकलीफ होगी तो माँ को फोन करो। आपको देख लीजिए कि आप स्वयं उसको ठीक कर सकते हैं, आप उस पर हाथ रखें, वो सीख लें, कार्यरत है, आप स्वयं शक्तिशाली, आप में अनंत शक्तियां, आप उन शक्तियों को इस्तेमाल करें जो आपको दी गई है, उसको आप अपने हाथों से लोगों को बांटें, तो आपको आश्चर्य होगा कि आपके पास कितनी शक्तियां, स्वयं आपकी शक्तियां पूरी तरह से प्रस्फुटित हो सकती हैं। यही मैं बार बार सबसे कहती हूँ कि आप लोग कुछ करो, जो देखो सो मेरे ही ऊपर में डाल देने से कोई फायदा नहीं। अच्छा मैं तो ठीक कर दूंगी, लेकिन तुम मुझसे अच्छा कर सकते हो तो क्यों नहीं करते। तुम खुद ही से करो, एक दूसरे की भी मदद करना चाहिए। सहयोग में एक जन बीमार है और दूसरा अगर ठीक है तो उसको जा करके उनको मदद करनी, फौरन दौड़ के जाइए, देखिए आप कार्यान्वित होते हैं। जब नहीं हुए तो फिर मुझे, पर मैं आपसे कहती हूँ कि बिल्कुल हर वक्त आपके पास ये शक्ति है, और इसका जितना आप उपयोग करेंगे उतनी वो बहेगी, उतनी ही वो कार्यरत होगी, और उतने ही आप यशस्वी होंगे। लेकिन अपने ऊपर विश्वास रखें कि हमें माँ ने कहा है, वाकई में ये हमारे अंदर चीज है, हमें बढ़ाना चाहिए। आप सबके लिए कहना है कि गहराई तो बहुत आगे सहयोग में, लेकिन अभी देने का जो है ये कुछ काम करो। तो आप लोग क्योंकि बहुत गहरे, मैं मानती हूँ बांग्लादेश के सहयोगी बहुत गहरे हैं,
तो अब आपको देना शुरू करना है, लोगों को बांटना शुरू करना है और समझाना शुरू करना है और सहयोग में और लोगों को लाना है। आप बीमारियां ठीक कर सकते हैं, लोगों को संतुलन ला सकते हैं। जब आप कार्यरत होंगे, जब महासरस्वती का तत्व जागरूक होगा तो एकदम आप आश्चर्यचकित होंगे कि ये देश कहां से कहां पहुंचे। और वही हम लोग सारे हिंदुस्तान में बीमारी निठल्लूपना की है, कोई यही है ऐसी बात नहीं। सभी तुम लोग आलसी हैं और उसके आलसीपना के बहुत से बहाने भी हैं कि क्यों नहीं हम करते, इस वजह से नहीं करते, उस वजह से नहीं करते। सहयोग में भी लोग बड़े बहाने बताते हैं। अब अगर बहाने बगैर बताए आप कार्यरत हो, जैसे कोई कहेगा कि भाई हम गए थे तो वहाँ चादर ही नहीं साफ थी तो आप साफ कर लो, कोई ना कोई बहाने लगाना कि ऐसा था तो वो इसलिए नहीं होगा। या फिर दूसरी बात कि भाई हमें तो बहुत डर लगता है समाज का, या हमारे भाई से हमें डर लगता है। ऐसे डरपोक लोगों से तो सहयोग हो नहीं सकता और उनका भी भला नहीं हो सकता। सहयोग डरपोक लोगों के लिए नहीं, वीरों के लिए। और इसमें हाथ डालना चाहिए, सामने बढ़ना चाहिए, सबको आपका आह्वान चैलेंज देना चाहिए, आइए सामने देखते हैं, तब ये चीज होगी। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा काली विद्या इस बंगाल में फैली। मैं आई तब से कहीं बाप रे यहाँ की काली विद्या कितनी है, और कल से उसको सफाई कर रहे हैं। जिसको देखो वो उसको कहते मैं दीक्षित हूँ, वो दीक्षित है, ये दीक्षित है। जब सब दुखित ही है, दुखित क्या है? जो देखो सोई मेरा पैर टूट गया, मैं दीक्षित हूँ, मेरे सर में दर्द है, मैं दीक्षित हूँ। तो ये जो काली विद्या है, इससे भी गरीबी है। इस काली विद्या से छुटकारा पाना चाहिए और इसके लिए आप लोगों को कोई विशेष वस्तु होनी चाहिए। अगर आप भी मैं इस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ, मैं इस गुरु का शिष्य हूँ, मैं उस गुरु का शिष्य हूँ, मेरे ये गुरु है, 17 गुरु के फोटो रखे हुए हैं, और ये सब जिसका आज तो कोई अच्छा अनुभव नहीं आया, जिसको आपने देखा नहीं, सुना नहीं, जाना नहीं, ऐसे लोगों के पीछे भागने से फायदा नहीं। जो आपके सामने है उसे लें और उसमें कार्य करें। तो हमारी जो आज की पूजा है, ये मेरे विचार से सारे हिंदुस्तान के लिए आज होनी चाहिए। मुझे लगता है सारे हिंदुस्तान में ये बीमारी है कि हम कार्यरत नहीं, बिल्कुल कार्यरत नहीं। हम लोग जो है वो इच्छा बहुत जबरदस्त है, बहुत इच्छा हमको, ये जैसे पॉलिटिशियन जैसे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, और जैसे सीट पे बैठ गए तो फिर वो भूल ही जाते हैं, उनको कोई इच्छा ही नहीं रह जाती सिवाय पैसा कमाना। इसी प्रकार सहयोग में नहीं होना चाहिए। सहयोग में हमें कार्यरत होना है, और कार्यरत के लिए क्या क्या करना है इस पर विचार करना है। इसके लिए आप लोग मिले, आपस में बातचीत करें, हमें क्या करना है, हम क्या चीज कर सकते हैं, किस चीज से हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। कोई चीज सहयोग में ऐसी नहीं जो खटाई में नहीं पड़ी। ये जमीन ले दी एक्सपेरिमेंट्स के लिए, खरीद के दे दी, बड़ी सड़ रही, वो जमीन ले दी उसके लिए, वो सड़ रही। जब तक मैं नहीं हिंदुस्तान में आऊंगी तो एक छोटा सा रास्ता भी नहीं बन सकता, एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं बन सकती। मुझे समझ में नहीं आता कि इतने लोग होते हुए भी कार्य कुछ होता ही नहीं। और जब मैं चली जाती हूँ उसके बाद फिर आप विघटित हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और 2-4 लोग काम करते हैं। सहयोग संगठित कार्य है, सिर्फ 2-4 लोगों का कार्य नहीं कि 1-2 आदमी ही उसे करे। ये भी समझना जरूरी कि एक आदमी सब कर रहा है, एक ही आदमी सब दौड़ रहा है, ऐसे नहीं। सबको संगठित होना है। एक शरीर के जैसे अनेक अवयव होते हैं, उसी प्रकार आप हरेक सहयोगी एक सहयोग का अंग है, और जो इस शरीर का अंग है वो अगर समझ लीजिए एक उंगली का गड़बड़ हो जाए तो सारे शरीर में पीड़ा तो होगी ही, किंतु इस उंगली का कार्य ही समाप्त हो जाने से अब दूसरी कहाँ से उंगली लाई है। तो जब आप सहयोग में आए, वैसे तो सब सहज है, इसमें कोई शक नहीं, पर जो सबसे सहज चीज है वो मनुष्य छूटती नहीं है, और वो है यही संकीर्ण और यही अज्ञान कि हम कोई तो भी विशेष है और हमें कोई नहीं। तो आप लोगों के लिए मेरा यही एक बड़ा भारी समझ लीजिए कि प्यार का कहना है कि आप लोग
जिस प्रकार सहयोग में उतरे हैं, गहराई में उतरे हैं, इतना पाया है, अब वो देना चाहिए। जब तक दीप में प्रकाश नहीं होता तो हम उसमें प्रकाश देते हैं और कहते हैं कि चलो अब लाइट आ गई। फिर उसके बाद भी अगर वो प्रकाश मांगे तो उसे क्या कहना चाहिए? फिर तो उसको चाहिए कि दूसरों को प्रकाश दे। आज आप मेरी बात सुन रहे हैं, कल आप मेरी जगह बैठ करके मेरा कार्य कर सकते। यही होगा तभी सहयोग फैल सकता। और जिस जिस देश में ये हुआ है वही सहयोग फैला है। ऐसे आपको से अब बहुत से लोग ऐसे निकले आज की पूजा के बाद और ये कार्य करें, यही मैं आपको अन्यथा आशीर्वाद देती हूँ।